नमस्कार, गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम। आप जहां कहीं भी हो, सत श्री अकाल सभी को। मैं आपकी होस्ट क्रिस्टीना एबर्स तहे दिल से वेलकम करती हूं इस पर्टिकुलर शो पे, जिनका नाम है इन कॉन्वर्सेशन विद क्रिस्टीना एबर्स, यूनिक पॉडकास्ट बीइंग द चेंज। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ी है, दीपाली शिरगवे, डॉक्टर दीपाली शिरगवे। लेट मी टेल दैट टू यू। आज हमारे साथ जो मेहमान है उनके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत बताऊंगी और फिर हम उनकी ही जुबानी सुनेंगे उनकी जिंदगी की कहानी। कौन है ये दीपाली? कौन है डॉक्टर दीपाली? डॉक्टर बनने से पहले ये थी दीपाली शिरगवे। मैम, क्या मैं आपके नाम ठीक ले रही हूँ? यस, करेक्ट मैम। Okay, so this is Dr. Shirgave. Dr. Dipali Shirgave is an educator with over 14 years of experience in the field of education. She has done MSc in botany, MEd in education. She's done PGDMA from IGNOU, doctorate in education. So apart from this, she has completed certificate program in counselor training, diploma in Yogashtra and Akhil Bharatiya Gandharva महाविद्यालय इन प्रवशिका प्रथम म्यूजिक वोकल। तो हम शायद गाना भी सुन पाएंगे एक छोटी सी। एंड जब मैं ये बोलती है इनके बारे में तो वोकल अचीवमेंट्स है इनका। शी हैज रिसीव्ड नारी तू नारायणी अवार्ड बाय फन टू लर्न। शी हैज रिसीव्ड मल्टीपल अवार्ड्स लाइक इंडियन ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड, रिसीव्ड EduRock Best CCA School Award. She's received Best Educator from Nalana. She's received Dr. Sarvapalli Radhakrishnana Shiksha Parva Award, Shik Guru Puraskar. She's received College of Veda, received Nation Builder Award by Rotary Club West Zone Mumbai, APJ Kalam Award, Rudra Ratan Award, World Record Earth, Inspiring Women 2022, Global Femina Excellence Award, and many more awards. Gifted with inborn leadership qualities, she has held positions demanding immense command, control, and organization. She is an effective event organizer and has conducted many prestigious school events and competition with professional experience and excellence. So welcome to my show, Dr. Dipali. Welcome to your host, Christina, from Voice of Manavta. Now, Voice of Manavta is a TV news channel based in the US. अब Voice of Manavta TV news channel क्या है? ये लोगों का चैनल है, ये किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, बट इट इज पब्लिक प्रॉपर्टी। दिस बिलोंग्स टू द पब्लिक। और ये जिंदे लोगों के शो है। हम क्यों बोलते हैं ये जिंदा लोगों के शो है? क्योंकि इस शो में हम सच बोलते हैं, वरना चुप तो मुर्दे भी रहना जानते हैं। So welcome to my show, Being the Change, inspiring stories of inspirational individual. So आज आप यहाँ पे हैं। आप थोड़ा इंट्रोडक्शन, मैंने तो आपकी इंट्रोडक्शन दे दी हमारे दर्शकों को। आप अपनी तरफ से थोड़ा बताइए अपने बारे में। कहाँ रहती है, क्या करती है, परिवार में कौन कौन है? Namaskaram to all. First of all, my humble gratitude towards Voice of India TV, Christina ma'am and Meghra sir. I'm really, what we can say, I'm blessed today. I'm giving interview in front of you. So my name is, as you said, Dr. Dipali Shirgave. I'm working as an educator, counselor and trainer in Pune. Past 14 years, I'm having experience in education field. I'm having two daughters. Elder one, she is studying in mass media, and younger one, she is in 12th standard. So I have a very lovely family. So by God's grace, I'm doing my work, and teaching is my passion. Thank you, ma'am. Great. Teaching is your passion. So you've been in the teaching industry for the last 14 years. 14 years. How did yes. you get into the teaching industry? What inspired you? And when you wanted to take up this particular job, what were the challenges that you have faced and why you never gave up in life? Yes, ma'am. When I was in 5th standard, my grandpa, he has received President's National Best Teacher Award. So that time I saw
how the people were appreciating him, how they were giving him the respect. So that time only I decided that I want to become a teacher, because I was seeing him as a leader, how he was influencing to the students, he was guiding to the teachers. So that time only I decided that now I want to become like my grandpa. So I got married in 1998 and I shifted to Bangalore. So in Bangalore, the language was a big problem because I was not knowing Telugu, Kannada. So I have decided just let me pursue my higher education. So I was just reading the books, digest. I was just keeping busy for me. And in 2004, when I got, we have shifted to Kolhapur. That time I was a mother of 2 daughters. So that time I have decided that now I have come in my state, so I have to do something. So I have given the B.Ed entrance exam and I have passed with the very good marks. Then I decided that now this is the time. If I have completed the B.Ed, I can get the teacher's job. So I did very good marks in B.Ed, and first opportunity when I went to one of the public school, CBSE public school, where I met Mr. Assisi Furtado principal, and that time he had asked me, if you are interested you can join our school, but I want the dedicated and passionate teachers. So almost means at that time I was eager to teach to the students. So I have decided that no, I have to do for society and I have to do some work for the children. So my journey started as a teacher in 2008 until it's going on. So by God's grace, I'm blessed that I'm in the right profession. Oh, that's wonderful. So have you been supported by your husband? Yes, he is the main pillar of, you can say, he's the, what we can say, pillar of my family. And he is the one person always motivates me. And whenever I want to give up, he always motivates and he encourages me. No, you can do it. Recently, I can give you the example of this doctorate also. During the pandemic, he was the one person he used to tell me, no, now you don't waste time. This is the time you can utilize your whatever the further studies and apply for the PhD. And because of him, whatever, and you will not believe, and I want to tell all the women, कि those who are saying कि मुझे ये possible नहीं है, शादी के बाद कुछ नहीं होता. But in fact, here I would like to say proudly, मेरे शादी के बाद ही मेरे पूरे whatever the higher education I have pursued after the marriage, after 10 years of marriage, I did MSc, I did M.Ed, then PG DMA, then this counseling course, then diploma in Yoga Shastra, and recently I have completed this doctorate only because of my husband and my family members. So I feel if family members support is very important. तो ये बताइए, ठीक है, आपके नाम के आगे डॉक्टर लग गया, तो जो मेडिकल टर्म्स में डॉक्टर यूज किया जाता है और जो एजुकेशन टर्म्स में डॉक्टर यूज किया जाता है, इन दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है मैम? डॉक्टरेट इन एजुकेशन में आपको यू विल गेट मेनी सब्जेक्ट्स. सो आई हैव चूजन एजुकेशन सब्जेक्ट. डॉक्टरेट इन एजुकेशन आई हैव डन, और उसमें मैंने ऐसा सब्जेक्ट लिया बिकॉज मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इमोशनल क्वोशंट. अर्लियर all the educators were giving importance to the IQ, intelligent quotient, but when I have seen the students of specially adolescent stage के 8th standard से till 18 तक, जो बच्चों के जो emotions changes होते हैं, and we have to accept that changes, but what we can say कि ये हमारा जो समाज है वो मुझे लगता है कि वो उन बच्चों को नहीं समझ पाता. But as a teacher, अगर आप उनसे सच में if you have become a friend, एज अ फ्रेंड, तो वो बहुत सारे बच्चे आप उनको आगे ला सकते हो, एंड दे कैन एक्सप्लोर एनीथिंग. तो हियर दिस वाज द मेन रीजन आई हैव चूजन द इमोशनल इंटेलिजेंस अमंग द एडोलेसेंस स्टूडेंट. ये टॉपिक मैंने चूज किया, उस पर रिसर्च किया, एंड आई गॉट द PhD. वंडरफुल. अब आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, हम देख रहे, तो ये जो अवार्ड है
खास करके नारी तू नारायणी अवार्ड, ये किस चीज के अवार्ड है ये? व्हाट इज दिस अवार्ड ऑल अबाउट? और क्यों मिला आपको? हाँ, नारी तू नारायणी ड्यूरिंग पैंडेमिक, एज ए एजुकेटर, एज अ female educator, we have all the educators, we have done very good job, means day and night we have worked for the students, for the school, for the society. So they have given this Nari to Narayani award, means नारी में बहुत सारी चीजें, नारी एक शक्ति है. And now here I would like to inform to all the viewers, हैप्पी शुभ नवरात्रि. आज का जो पहला दिन है, शैलपुत्री फर्स्ट डे है, तो आज से नवरात्रि चालू हो रहा है. तो मेरे सभी दर्शकों को हैप्पी नवरात्रि, आपको भी और मंदिर मेघराज सिंह को भी. तो मुझे लगता है कि नारी में बहुत सारे खूबियां रहती है. वो महाकाली रहती है, वो दुर्गा रहती है, वो एक स्कंद माता रहती है, वो कात्यायनी रहती है. तो अलग अलग ये रूप जो नारी के है ना, वो उसमें जो भी कैपेसिटी है उनको खुद को वो एक्सप्लोर करना होता है. तो ये ऐसा ही फन टू लर्न जो रचना मैम है, उन्होंने ये नारी तू नारायणी अवार्ड मुझे दिया गया. सो बहुत ही खूब जी. मेरे सारे दर्शकों से दिल से, तहे दिल से शुभकामनाएं हैं. हैप्पी नवरात्रि सभी को. और नारी का मतलब सम्मान होता है, और आप सभी नारियों को सम्मान करें, चाहे वो आपकी माँ बहन हो या किसी और की भी माँ बहन हो. सभी नारियों को हमें सम्मान करना चाहिए, क्योंकि भगवान की रूप में नारियां होती है. दुर्गा हो, काली हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो या मदर मैरी हो, कोई भी. तो नारियों के सम्मान करें. और ये बात हम ना भूलें कि केवल दुर्गा पूजा ही ऐसा पूजा नहीं है जहाँ पे नारी के सम्मान किया जाता है. साल के जितने भी मतलब साल में दिन होते हैं, पूरे साल हमें वो सम्मान रखना चाहिए. और अगर आपके आसपास में आप देख रहे हो कि कोई नारी को कोई परेशान कर रहा है, तो प्लीज उनकी सपोर्ट में आवाज उठाइए. और मुझे लगता है कि ये हर घर में होना चाहिए कि एज अ पेरेंट, अगर आपने बच्चों को, इफ यू टीच टू योर स्टूडेंट्स और सन कि हाउ टू रिस्पेक्ट टू वुमेन और गर्ल, तो मुझे लगता है कि ये बहुत समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा. मैं तो ये कहती हूँ कि अपने बेटों को ये मत पढ़ाइए कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, उनको ये सिखाइए कैसे बड़ा होना चाहिए एक अच्छा परिवार में. और अगर सिर्फ माँ अपने ही घर पे मतलब औरतों की रिस्पेक्ट कर रहे हो, बाहर में भी औरतों को किस नजरिए से देखना चाहिए वो सिखाइए. और आप अपने बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए. अपने बेटों को तो आप रिस्पेक्ट करना सिखाएंगे, लेकिन अपने बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाइए. अपने बेटियों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाइए. वो बहुत जरूरी है. हक के लिए लड़ना यही नहीं होता है कि हम तलवार लेके बीच चौराहे पे खड़े हो जाए और मुझे हक चाहिए, वो लड़ाई. लेकिन कलम के भी बहुत पावर होते हैं उस चीज में, और सच्चाई के साथ देने का हिम्मत दीजिए उन लोगों को भी. इसी के साथ मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी अवार्ड मिला है, तो क्या ये भी पैंडेमिक के समय ही आपको ये अवार्ड मिला गया? यस मैम, ये भी पैंडेमिक के समय ही अवार्ड दिया गया है कि जो सोसाइटी में जो एजुकेटर्स काम कर रहे थे, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ये ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है. तो एज अ लीडर मुझे लगता है कि सब पैंडेमिक में, कि इट्स नॉट लाइक दैट कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या नर्सेस या सभी को, टीचर इज ऑल्सो वन, टीचर और एजुकेटर इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी, एंड दे शुड ऑल्सो. सब कुछ हम बोलते कि सब कुछ बंद हुआ था पैंडेमिक में, बट एजुकेशन जो क्लासेस थे वो बंद नहीं थे. एंड यू विल नॉट बिलीव, माय टीचर्स और ऑल द एजुकेटर्स, दे हैव वर्कड वेरी हार्ड. अर्लियर वी वर नॉट नोइंग हाउ टू यूज दिस Zoom, बट विद इन वन डे वी हैव लर्नड एंड वी हैव स्टार्टेड द ऑनलाइन क्लासेस. सो आई थिंक दैट वाज द बिग अचीवमेंट. उस चीज के लिए तो मैं सारे टीचर्स का धन्यवाद बोलना चाहूंगी. सारे टीचर्स को, you guys have done a wonderful, tremendously, courageous job. आपको पता भी नहीं है Zoom कैसे यूज करते हैं, Google Meet कैसे यूज करते हैं, फिर भी आप उस चीज को सीखे हैं. तो ये learning will never stop and it should never stop, because हम हर
लाइफ के हर मोड़ पे हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, कभी छोटों से तो कभी बड़ों से, लेकिन हम सीखते हैं। ये लर्निंग कभी बंद नहीं होती है। यू शुड बी एज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, तो ही आप, मुझे लगता है कि यू विल बी ग्रोइंग इन द लाइफ। Absolutely. I see that you've also received the Best Principal Award. और जहाँ तक मुझे पता है शायद पिछले 1 साल से आप जॉब नहीं कर रही हो कहीं पे भी। नहीं, 1 month रिसेंटली आप जॉब नहीं करते हो। Yes. पर आप एज ए प्रिंसिपल काम किए हो, तो एज ए प्रिंसिपल कितना तकलीफ या मतलब कितना डिफिकल्टीज के आपको सामना करने पड़ते हैं एज ए प्रिंसिपल, और कैसा लगा आपको प्रिंसिपल बन के, वो सीट पे बैठ के, वो चेयर में बैठ के, जब टीचर्स लोग को आप कहते हो कि अच्छा ये काम करना है, वो करना है, वो जो इंस्ट्रक्शन देते हो, तो कैसा लगा आपको? वो दौर कैसा था आपकी जिंदगी में? यस, बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम आपने कि प्रिंसिपल बनने का। अर्लियर when I was seeing other principals, what I was thinking, अरे principal means only we have to go in the office, we have to give the orders and we have to sit, and what वो एक respect रहता है, तो that I was thinking, but my that perception was totally different. When I sat in that position, that time I came to know कि leadership is not about the titles, positions or work hours, it's about relationship. So as a leader, first you should be a good human being. You should understand each and every, not only admins, teachers, students, parents. These 4 pillars are there. You have to understand their emotions, you can say their problems, and you have to tackle how to face their problems, and you have to guide them. So I think I have done, means I was doing as a leader, I was leading this position, and I was having a very good team. Always I was motivating them, and as a leader ये बहुत important है कि हमेशा, चाहे you may get failures or success, it doesn't matter, but you should keep moving on and you should motivate your team members and always appreciate that is very important. छोटा सा छोटा आपका इवेंट हो स्कूल में, but you appreciate your team members, your students. That is very important. उनको आगे प्रेरणा मिलती है कि अरे मैंने इतना सा छोटा सा काम किया लेकिन मुझे appreciation मिला. I think appreciation is very important. And for the students or for the parents का तो बहुत सारा, means I have faced so many you can say hurdles. बहुत बार ऐसा होता था कि बच्चे को पेरेंट्स समझ नहीं पाते, especially as I said in the adolescent stage, when the child is coming in the adolescent stage, but पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है. और आई बिलीव कि दिस जनरेशन जेड इज वेरी टैलेंटेड, दे गिव रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी मेंबर्स. ओनली वी हैव टू, एज आई सेड, कि वी हैव टू बी अ फ्रेंड. उनको ऐसे आप डांट के, वो दैट अर्लियर व्हाट वी यूज्ड टू डू, ऑल एल्डर्स और एज अ टीचर वी यूज्ड टू स्कोल्ड देम. सो ये ऐसा नहीं है, बिकॉज आई हैव पर्सनली आई हैव गॉन थ्रू एंड आई हैव सीन, if you'll tell the students very polite way, if you give respect, they will give you respect. ऐसा मत सोचो कि you are a leader or you are a teacher, they should give a respect, because आज की जनरेशन को हमारे से भी बहुत स्मार्ट है. they know कि before the class they will tell you, ma'am ये मैंने पढ़ा है, this is the equation or this is the formula. So whenever you will go in the class, you should be prepared and you should respect the students. That is very important. Yeah, absolutely. दूसरा तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपको कुछ एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला है, तो आप उस पर थोड़ी रोशनी देंगे कि क्या है वो अवार्ड, कैसे कोई उस अवार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर क्या करने से ऐसा अवार्ड्स मिल सकते हैं लोगों को? हाँ सर, मैम एपीजे अब्दुल कलाम, आई हैव कंडक्टेड वन वर्कशॉप इन आवर स्कूल. मिस्टर रवि शंकर जो थे IDYM फाउंडेशन के, तो ही IIT, we can say IIT, he taught in the IIT, so he has started this mission, Abdul Kalam Foundation. So he has, last year during pandemic, he has conducted one workshop in my school, and my many students, they inspired and they have taken in the various they have participated in the various competitions, and due to that I got this award. कि as a जो अब्दुल कलाम का मिशन है कि बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करो
कि आगे जाने के लिए। और मुझे लगता है कि ये जो छोटे गांव का छोटे से छोटा बच्चा भी हो, लेकिन अपने जो सपने पूरे करने होते हैं, ऐसा नहीं कि सपने छोटे होने चाहिए, अपने बड़ा सोचो और अपना सपना पूरा करो। तो ये बहुत अच्छा मैंने एक्टिविटी मेरे स्कूल में बच्चों ने, वी हैव कंडक्टेड वन साइंस एग्जीबिशन ऑल्सो, दे हैव मेड सम मॉडल्स like what can say rocket, have made some projects, and I got very good response from the parents and from the society. So wonderful. So with this you also have a flair, a passion towards singing. So yes, ये मतलब कब आपको पता चला that you want to, you know, it's okay, सबका होता है। बहुत लोग ये बोलते हैं अरे मेरा पास टाइम नहीं है तो मैं ये नहीं कर पाता हूँ या वो कर पाती हूँ, ठीक है, मेरा तो काम इतना होता है, हॉबीज क्या करूँ, आजकल तो फ्री टाइम नहीं मिलता है, जो मुझे पसंद है मैं वो कर ही नहीं पाता हूँ। तो ऐसा बात नहीं है, टाइम सबको वही टाइम मिलता है दिन में 24 घंटा, किसी को 26 या किसी को 32 आवर्स नहीं मिलते हैं। तो उस टाइम को कैसे आप मैनेज करते हो वो आपका ऊपर पूरा निर्भर करता है। तो आप अपने फ्री टाइम में कब कैसा क्या कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है हमेशा से अपने अंदर के बच्चा को कभी मरने मत देना। चाहे आप कितने भी बड़े इंसान बन जाए, आप कितने भी कमा लो पैसे, जितना भी जो कुछ भी कर लो, लेकिन आपके अंदर वो जो बच्चा है एक, उसे कहीं खोने मत देना। तो ये आपका कैसा जागा, मतलब ये पैशन जो है सिंगिंग के towards singing, how did you realize that you know you love singing as well? I think from childhood onwards I was a bathroom singer, you can say, but when I got an opportunity to meet my guru Anjali ma'am, I went and just I was talking with her and I sang one single line. So she said, no, your voice is very good and you have to come for this music classes. So I have started, and what I have observed ki in spite of this 8 to 10 hours working hours, so I was feeling very stress free, and that I have taken as a hobby. I'm an avid reader. I want to explore the new places. And apart from that, I have completed these 2 exams. This music Pratham Praveshika I have completed. Okay, so क्या आप हमें एक गाना सुना पाएंगे? Yes, ma'am, जरूर. This song, this is my one of favorite song. This song has written by Sant Jnaneshwar, जो महाराष्ट्र के बहुत महान संत है ज्ञानेश्वर, उन्होंने ही ये रची है कविता। तो मैं अभी वो 2 लाइन्स सुनाना चाहूंगी आपके सामने। मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, फुले विचिता बहरू कळियासी आला, मोगरा फूलला, मोगरा फूलला, इवली सिरो लाविली तारी, इवली सिरो लाविली तारी। थैंक यू। बहुत अच्छा। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनका पति कुछ बिजनेस कर रहे हैं, वो घर पे बैठे हैं, तो वो मतलब आगे बढ़ के काम नहीं करते, या उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है। टैलेंट तो बहुत है उनके अंदर भी, चाहे वो पकाने की हो या फिर सिलाई कढ़ाई कुछ भी हो, या फिर पेड़ पौधे लगाने की हो, पर उनको वो इंस्पिरेशन नहीं मिलती है कि हम भी कुछ कर पाए, वो प्रेरणा उनको नहीं मिलती है। तो उन औरतों के लिए क्या मैसेज है आपके पास? मेरा मैसेज ये है कि हमने देखा होगा पैंडेमिक में बहुत सारे जो हम नारियां है, वुमेन्स है, उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा था कि हम ये कर सकते हैं। कई आफ्टर पैंडेमिक आपने देखा होगा जो इस घर में खाना बनाते थी, नाउ शी हैज बिकम अ शेफ और शी हैज बिकम अ वेरी गुड पेंटर, या
कुक जो बनाती है, बेकिंग में वो अभी बिजनेस कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशंस जो एज अ होम मेकर थी वो आजकल एज अ प्रोफेशनल काम कर रही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा हम ओनली सोचते हैं कि बाहर जाने के बाद ही आपका करियर होता है। नाउ ड्यू टू डिजिटलाइजेशन यू कैन डू सो मेनी थिंग्स। अभी आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, आप घर में कुकिंग करके यू कैन हैव अ कुकिंग क्लासेस, एम्ब्रॉयडरी क्लासेस, सिंगिंग क्लासेस। और अर्लियर इट वाज हाउ इट वाज कि ओनली यू हैव टू गो एंड टीच। अभी ऐसा कुछ नहीं है। डिजिटल घर में बैठ के पूरा अपनी व्हाट वी कैन से अपना जो घर बार है वो सब संभाल के यू कैन गिव टाइम टू योर हॉबीज एंड यू कैन गिव टाइम टू योर प्रोफेशंस। एब्सोल्युटली। सो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सारी जितनी भी महिलाएं हैं वहां पे उन सभी से दरख्वास्त है, उन सभी से मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने लिए कुछ कीजिए। और मुझे लगता है यहाँ पर एक बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत सारे मुझे लगता है कि मेरी जो बहुत सारे महिला है उनको पता नहीं कि हमेशा मी टाइम निकालना बहुत जरूरी है। मी हैप्पी टाइम। इन माई स्कूल आई हैव स्टार्टेड एवरी वीक I used to tell my teacher every Saturday at least 1 hour you have to give me happy time। मतलब उसमें अगर आपको गाना अच्छा लगता है तो you go for singing, अगर आपको meditation अच्छा लगता है तो do meditation, if you want to play badminton go for badminton। और ये हमारी माइंड की ये है, मुझे लगता है कि सोच है कि मुझे घर गृहस्थी से टाइम नहीं मिलता। इट्स डिपेंड ऑन यू। आपने जैसे सही कहा कि सबको 24 आवर्स मिलते हैं, लेकिन आप हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज दैट टाइम एंड हाउ वी कैन डू आवर अचीवमेंट। मुझे लगता है कि अगर हर एक महिला अपना जो हॉबीज है अगर संभालेंगी तो वो बहुत हमेशा जॉयफुल रहेगी, स्ट्रेस फ्री रहेगी और एक कॉन्फिडेंट वुमेन वो हमेशा वो खुद को फील करेगी। वैसे भी हमें अलग अलग भाषाओं में न्यूज रिपोर्टर की जरूरत है वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल के लिए। आप में से अगर किसी को भी जुड़ना है हमारे टीवी न्यूज चैनल पे, प्लीज आप मुझे डीएम भेज सकते हैं या मेघराज जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग भाषाएं से ये मेरा मानना है, ये मतलब है कि महाराष्ट्र के है तो मराठी, गुजरात से कोई गुजराती, बंगाली, अलग अलग भाषाओं की हमें रिपोर्टर की जरूरत है। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं इस बारे में और हमें बहुत खुशी होगी कि अगर हम किसी महिला को आगे बढ़ने में हम उनकी प्रेरणा बने। तो बच्चों के लिए, अगर स्टूडेंट्स के लिए आपको कोई मैसेज देना हो तो क्या मैसेज देंगे आप? बच्चों के लिए मुझे वही लगता है बच्चों को। जी मेघराज जी। यस, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूंगा। हाँ सर, प्लीज प्लीज। देखो, मैं महिलाओं को खास करके बात बताना चाहता हूँ। महिलाएं अगर अपने आप को पहचान लेगी वो कौन सी शक्ति है, तो मेरे ख्याल से महिला कभी ना तो डोलेगी, ना कभी डिगेगी, ना कभी हारेगी, ना कभी रुकेगी। महिलाओं के अंदर जो माइंड सेट होता है वो इंसान से 10 गुना ज्यादा स्ट्रोंग होता है। मतलब दिमाग जो इंसान है महिला का वो 10 गुना ज्यादा स्ट्रोंग होता है। अगर महिला सच्चाई और ईमानदारी पे चलेगी तब उसकी ताकत को पहचान पाएगी। नहीं तो महिलाएं क्या करती है ना, चुगलियां लगा करके उसको मतलब उसमें जब अपना टाइम वेस्ट कर देती है। तो मैं चाहता हूँ कि महिलाएं जो है ना सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पे चल करके अपने आप को पहचाने। और दीपाली जी, हमारा तरफ से पूरा सहयोग रहेगा इसमें, जहाँ भी आप कुछ अच्छा काम करेगी। और वॉइस ऑफ मानवता हमेशा जिन लोगों के साथ में, तो आपके साथ में थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। दीपाली जी, एक मैसेज आज के युवाओं के लिए। हाँ मैम, मैसेज मेरा यही रहेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन सबसे अच्छा हमें आज की जनरेशन को एज अ गुड ह्यूमन बीइंग बनना बहुत जरूरी है। यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ऐसा नहीं कि यू आर गेटिंग 98-99% बट यू डोंट नो हाउ टू ट्रीट द ह्यूमन बीइंग्स, यू डोंट नो द इमोशंस ऑफ अदर्स। सो आई बिलीव कि आज की जनरेशन को एक सोशल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है और उसके साथ ही हमें एज आई सेड कि ह्यूमैनिटी जो हमें महात्मा गांधी जी ने सिखाया कि हर एक जो छोटा से छोटा भी काम करने वाला हो या बड़े से बड़ा हो, हर एक को रिस्पेक्ट दे दो और उनको एक एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करो। कि ऐसा नहीं यू आर द बॉस और वो चपरासी है तो उसको आप कोई भी किसी तरीके से आप उसका इंसल्ट करो। सो आई थिंक
रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच फील्ड। तो अगर ये बच्चे, आज की जनरेशन के बच्चे ओनली पढ़ाई और जो अभी जो ग्लैमरस बढ़ रहा है गैजेट की वजह से, तो मुझे लगता है कि अपने जो बच्चे, हमारा जो अगर एनिशिएंट अपने देखा होगा हिंदू कल्चर, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये बच्चों को वही अगर इम्प्लीमेंट करें, मेडिटेशन और हर दिन जो हमारा रहता है भगवान के प्रति आदर और जो सोसाइटी के प्रति आदर, और कुछ भी आप जो भी अर्न कर रहे हो, एटलीस्ट मुझे लगता है 5 to 10% यू डोनेट टू आवर सोसाइटी, जहाँ पर ऑर्फनेज है या ओल्ड एज होम है। And you can do, it's not like that donate karo, you can do in your society also, and we have done in our society during pandemic। बहुत सारे जो old age parents थे और उनके बच्चे अब्रॉड में थे, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए दवाई लेके देना, उनके ग्रोसरी लाना, अगर इफ दे आर नॉट एटलीस्ट 10 मिनट्स अगर उनके साथ आप स्पेंड टाइम करोगे तो दैट इज वेरी गुड। और मुझे लगता है कि अभी मेनी प्रोग्राम्स आर कमिंग इन द स्कूल, तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है बच्चों को पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होने के लिए। जी, इसी के साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगी दर्शकों से कि मैं सोशल वर्क भी करती हूँ। बहुत लोगों को पता है, अगर आप मेरे फेसबुक प्रोफाइल भी देखेंगे तो मैं सोशल वर्क से भी जुड़ी हूँ। तो अगर आपको किसी तरीका की सहयोग चाहिए, अगर आपको सजेशन चाहिए, आप कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पा रहे हैं वो चीज, और आपको अगर किसी की एडवाइस चाहिए, किसी का मदद चाहिए कि आपको वो बता दे किस तरीके से क्या कर सकते हैं, तो मुझसे आप जुड़ सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी इस बारे में। जरूरी नहीं है कि आप अगर पुणे में बैठे हो, लंदन में बैठे हो, या फिर आप गुजरात में कहीं बैठे हो, या फिर आप अहमदाबाद में या फिर राजस्थान में कहीं भी बैठे हो, आप फेसबुक के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर कोई एडवाइस सजेशन चाहिए तो आप मुझसे वहीं जुड़ के पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। आप अपने ही घर बैठ के या फिर अपने ही आसपास में जितने लोगों को मदद कर सकते हैं आप प्लीज कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप एक टाइम पे 100 लोगों का मदद करें, पर आप किसी एक का भी अगर मुस्कान के जरिया बनते हैं या फिर कारण बनते हैं ना, तो आपको बहुत खुशी मिलने वाली है इस चीज से। आप अगर किसी एक का भी मदद कर पाते, चाहे वो एक छोटा स्टूडेंट ही क्यों ना हो, एक शिक्षक का ही मदद कर दे आप, या फिर जो विद्यार्थी है उनका मदद कर दे, और आप अगर किसी के जीवन में सफलता और उनके खुशी के कारण बनते हैं, तो ऊपर वाले आपसे तो बहुत खुश होंगे और आपको भी बहुत सुकून मिलेगा अपनी जिंदगी पे। तो टीचर्स के लिए क्या आपके पास कोई मैसेज है? जितने भी प्रिंसिपल्स हो या फिर टीचर्स हो, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, टीचर्स के लिए वही मैं बोलना चाहूंगी कि डोंट गिव अप, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ने ड्यूरिंग पैंडेमिक चैलेंजेस किए हैं, एंड आफ्टर पैंडेमिक टीचर्स का जॉब बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज पेरेंट्स का इंटरफियरेंस बढ़ गया है, बिकॉज अर्लियर दे वर सिटिंग विद देयर चिल्ड्रन एंड नाउ आफ्टर 2 years मेनी स्टूडेंट्स देयर कंसेप्ट्स आर नॉट क्लियर। तो अभी हर एक पेरेंट को लगता है कि मेरे बच्चे को नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि ओनली लर्निंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, जो आज मैंने जैसे बोला कि आपके बच्चे को सोसाइटी में कैसे चैलेंजेस फेस करना है वो सिखाओ। और टीचर्स को भी मुझे लगता है कि she has to focus main on experiential learning, rote learning को उसको ज्यादा मोटिवेट नहीं करना है। she has to give more importance to the experiential learning, skill based। और हर एक बच्चे में एक एबिलिटी होती है, कोई भी अगर वीकर स्टूडेंट हो तो आई थिंक वो जो जिसमें उसका भले वो मैथ्स में बहुत पुअर हो, लेकिन वो हो सकता है कि ही इज वेरी गुड इन आर्ट, ही इज वेरी गुड इन म्यूजिक। तो ऐसी बच्चों की प्रतिभा हमें वो टीचर ही पहचान सकती है, और पेरेंट्स को काउंसलिंग करके शी कैन मोटिवेट दैट स्टूडेंट एंड दैट स्टूडेंट कैन शाइन एनीवेयर। इसी बात से मैं सारी माता पिताएं हैं, अगर हमें देख रहे हैं, कभी किसी को खाएंगे, तो उन सब से यही दरख्वास्त है, अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट फुटबॉल में है तो उसे प्लीज क्रिकेट खेलने के लिए मत बोलिए। अगर उनका इंटरेस्ट साइंस में है तो प्लीज कॉमर्स मत दीजिए। उनका इंटरेस्ट अगर आर्ट्स में है तो उनको साइंस पढ़ने के लिए मत बोलिए। वो जो करना चाहते हैं आप एक बार उनका भी सजेशन सुनिए, उनका भी आइडिया सुनिए, उनका क्या मर्जी है वो भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं बोल रही अगर कुछ बुरा है उनके लिए तो आप वो करने दें उनको, लेकिन उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर उन्हें सिंगिंग अच्छा लगता है तो प्लीज उस चीज को बढ़ावा दे, डांसिंग अच्छा लगता है तो उस चीज को बढ़ावा दे, और प्रेशराइज ना करें बच्चों को। तो ये है। और
मैं इसी के साथ हम लोग अलविदा लेंगे, पर उससे पहले आई वुड लाइक टू थैंक तनवीर फॉर डूइंग ऑल द डिजाइनिंग फॉर दिस स्पेशल इवेंट ऑफ माइन which comes online once a week. It could be any day of the week, so day is not finalized which day I would be coming online and having this show, inspiring stories of inspirational individuals, and it's called Being the Change. So if you want to be the change, you have to, if you want to see the change, you need to be the change. So Tanveer, thank you wherever you are for doing all the creatives for me. एंड थैंक यू मेघराज जी, हमारा जितने भी स्पॉन्सर्स हैं इस शो पे उन सबका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दीपाली, थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो में आए हैं और हमें जितने लोग भी सपोर्ट करते हैं, वहां पे जितने लोग भी देखते हैं, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपकी होस्ट क्रिस्टीना एवर्स, वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज चैनल में अब आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप जहाँ कहीं भी हो खुश रहिए, पूजा एंजॉय कीजिए। हैप्पी नवरात्रि टू एवरीवन, एंजॉय योर पूजा। नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सर।